ओके, सुबह के लेक्चर में भी इतना ही अटेंडेंस था क्या? यस मैम। तो क्या सब लोगों ने छुट्टी ले लिया क्या? वेकेशन वेकेशन मोड? अच्छा, मैंने आई डोंट रिमेम्बर, बट इज दिस द थिंग व्हाट आई डिड लास्ट, दैट इज एडिशन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यही किया था ना? तो वही मुझे थोड़ा डाउट था, मैंने सब पीपीटीज ओपन करके रखे, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा था। ओके, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, जस्ट अ मोमेंट। दो मिनट का। Am I sharing the screen? यस मैम। अच्छा। Searching something I'm not getting. Hmm, 2 minutes.
Ma'am, you are not audible. नहीं, मैंने 2 मिनट बहुत किया है। मैं ना कुछ सर्च कर रही हूँ, जरा एक मुझे 2-3 मिनट दे दो, और 5 मिनट, जस्ट 5 मिनट, आई एम स्टार्टिंग। Okay, ma'am. मेरा रेफरेंस बुक गायब हो गया लैपटॉप से। So just give me a minute and then I will just start अभी स्टार्ट कर देंगे, बाद में ढूंढूंगी। अगर मुझे अभी नहीं मिला तो मैंने सर्च में डाला है, 2 मिनट। शायद मैं लेक्चर में हूँ करके वो ओपन नहीं हो रहा था, तो स्टार्टिंग चलेगा, नो प्रॉब्लम। Everybody is able to see the screen, huh? स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना सबको? Yes, is the screen visible, all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, addition of hexadecimal number we saw. Now we will see subtraction of hexadecimal number. In subtraction of hexadecimal number, again it goes in 3 patterns. It will go by direct method, then it will go by 1C method and 2C method. Subtraction of hex numbers. Okay. So first method will be direct method. डायरेक्ट मेथड में भी 2 वेज आएंगे, एक तो डायरेक्टली एंड दूसरा लाइक कन्वर्टिंग दोज नंबर्स टू बाइनरी एंड देन डूइंग बाइनरी सब्ट्रैक्शन। ओके, सो इसमें भी फर्स्ट इज बाय कन्वर्टिंग x to binary and performing binary subtraction. Okay, and second will be direct subtraction. So I am showing you both ways. I will show you one example of this also, so that it's clear. Okay, so let's take something like 4b x minus 2a x will be what? Okay,
4d hex minus 2a hex will be what? So first is convert 4d into equivalent binary. So when we represent hex numbers to binary, they will be represented in 4-bit form. Individual hex number in 4-bit form. So 4 will be written as 0, 1, 0, 0. D will be written as 1, 1, 0, 1. Okay, next number is 2A. So 2 will be written as 0, 0, 1, 0 and A will be 1, 0, 1, 0. Subtract. So this subtraction is going to be the direct subtraction I'm going to apply. So 1 minus 0 will be 1. 0 minus 1, difference 1, borrow 1. Okay. Now first we will solve for this 1 minus 0. That is 1. Then 1 minus 1 will be 0. Is this clear to everyone? Yes. Next, 1 minus 1 is 0. 0 minus 0, 0. 0 minus 1, difference 1, borrow. Over here I am writing. Okay, then 1 minus 0 is 1. 1 minus 1, 0. And a 0. Okay, so now what does this become? You have to convert that back. What is this? 0011 is 3. And what is this? 0010 is 2. So this is 3. And this is 2. So answer what you get for this is 23. So 4d minus 2a is 23 in hex. Understood now all of you? Students, I am asking you something. Yes, ma'am, understood. Yes, ma'am. So this is direct method. So direct method is easy. So the answer will be represented as four d to the base 16 minus 2a to the base 16 is 23 to the base 16. Okay. But if this we happen to do directly by hex subtraction, then how we will do it? We will purposely start with first basic example. Okay. So example 2, let's say. Just a minute.
take a minus 8. Small values we are taking so that you understand. Okay, because basically a is 10 and 8 is 8. So 10 minus 8 gives you 2. So very basic example we are taking. So a to the base 16 is basically what in decimal you need to interpret in your mind, just the way we did it for addition. So a to the base 16 is 10 to the base 10 and 8 to the base 16 is 8 in decimal. Now do the decimal subtraction. So that comes as 2 to the base 10. Convert back to hex. That is also 2 to the base 16. So then that becomes your answer. Okay. A to the base 16 minus 8 to the base 16 is 2 to the base 10. Okay. Now let's take some other example. Example 3. 73h minus 1ch. This is other way of writing hex numbers. Instead of writing 73 to the base 16 outside the bracket, if you write 73h, this is also symbolizing that 73 is a hex number. H is a valid notation used ahead of numbers to express the numbers as hex numbers. So 73h minus 1ch. Okay, so pay attention. 73h we have to write down individually in terms of decimal. So 7 is 7 in decimal, 3 is 3 in decimal. Okay, then next is minus 1ch. 1 is 1 in decimal and c is 12 in decimal. Okay, now we have to perform this subtraction. So 3 minus 12 we are doing. Now as we are doing 3 minus 12, we know that we cannot do that subtraction, smaller minus bigger, okay, over here. So what are we going to do? We are going to take a borrow. Huh? So taking a borrow means adding one single digit in the units place. Now units place of hex will be given taken as what? 16. जैसे डेसिमल में हम लोग 10 कंसिडर करते हैं, ऑक्टल में हम लोग 8 कंसिडर करते हैं, तो वैसे हेक्स में होगा 16. तो मैंने बोरो लिया 16 का. दिस इज योर बोरो. ठीक है, तो वो बोरो पहले डिजिट से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, 7 से सब्ट्रैक्ट करना है. तो मैं यहाँ पे 7 से सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगी, मैं नीचे लिखूंगी यहाँ पे. Okay, so now this will go as 16 plus 3 becomes 19. Now 19 minus 12 can happen. 19 minus 12 is 19. मैं purposely लिख रही हूँ. Minus 12 is 7. हाँ, और यहाँ पे ये जो 1 है ना, ये हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम एडिशन वाइज ही जाएंगे. तो ये बनेगा 2. So here also now 10 to the 7 to the base 10 and 2 to the base 10 happens, which is 5 to the base 10. So ये पोजीशन में डिजिट आता है 7 to the base 10 और ये पोजीशन में 5 to the base 10. So answer is now you convert 5 back to hex, that is 5, and 7 back to hex is 7. So it is 57 hex.
अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Ma'am, can you please explain it again? यस. अभी जैसे मैं एक डेसिमल समझा रही हूँ या फिर मैं ये हेक्स ही समझाती हूँ. 73 और हमने 12 लिया, 1C लिया ना. हाँ, तो अभी ये 3 माइनस सी नहीं होने वाला है बिकॉज सी क्या है, सी इज नथिंग बट 12, वो हमारे माइंड सेट में है. तो 3 माइनस 12 नहीं होता है. तो हम बोरो कहाँ से लेते हैं? जनरली यहाँ से लेते हैं. यहाँ से जब भी हम बोरो लेते हैं तो वो एड ऑन डेसिमल में क्या होता है, वो एक्चुअली जैसे डेसिमल में अगर 73 माइनस 46 मुझे करना है तो मैं यहाँ से कैंसिल करके यहाँ पे मैं 6 लिख देती हूँ और यहाँ पे मैं 1 यानी कि एक्चुअली 10 ऐड करती हूँ बिकॉज ये टेंस पोजीशन है, ये यूनिट्स पोजीशन है. तो 1 10 मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ. तो 10 प्लस 3 बन जाएगा 13. इसके लिए तुम 13 लिखते हो. और ये 7 जो था 10 प्लेस में, उधर से 1 नेक्स्ट पोजीशन में बोरो हो गया तो वो डिक्रीज हुआ 6 पे. यहाँ पे हम वैसा नहीं लिख रहे. हम यहाँ पे ना 7 से 1 नहीं कैंसिल कर रहे. हम यहाँ पे ये बोरो कैरी जो है ना, ये यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि ये 1 और 1 बन जाएगा 2. तो वो कंडीशन में भी 7 माइनस 2 5 ही बनेगा. अगर हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, तो भी क्या होगा, ये 6 बनेगा. 6 माइनस 1 ये वो केस में भी 5 ही बनता था. और यहाँ पे जो ये हम बोरो ले रहे हैं, ये बोरो जो है ये 1 यूनिट ऑफ हेक्स है. 1 यूनिट ऑफ हेक्स इज 16. तो इसके लिए यहाँ पे ये 16 ऐड होकर ये 19 बन जाता है और 19 माइनस 12 बनेगा 7. डिड यू अंडरस्टैंड नाउ? मैम दोनों चलेगा क्या? दोनों चलेगा बट लिखते समय मेथड ऐसा दिया है रेफरेंस में भी और सब जगह पे भी. ओके मैम. ठीक है. सो योर आंसर बिकम्स 73H minus 1CH is 57H. हाँ, अभी मैं यही चीज तुम्हें बताऊंगी जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल किया ना उसके साथ. 4D minus 2A. अच्छा, ये तो डायरेक्टली हो जाएगा सकता है. और लेती हूँ स्मॉलर माइनस देखो तो उसको तुम्हें समझेगा. A65 minus 777. कोई और पेंसिल की कंफ्यूजन नहीं करनी. A65H77 so ये A बनता है 10 to the base 10. 6 remains like that. 5 remains like that. 7 remains like that. 7 remains like that. 7 remains like that. Now when we go for subtraction, start. 5 minus 7 नहीं पॉसिबल है. बोरो लिया हमने 16 का तो यहाँ पे 1 ऐड किया. ठीक है. तो अभी ये बनेगा 16 plus 5 is 21 to the base 10. 21 minus 7 कितना आता है? 14 to the base 10. हेक्स में हो जाएगा e to the base 16. अंडरस्टूड ना ऑल ऑफ यू? लास्ट पोजीशन. फिर नेक्स्ट अभी ये बनेगा 8 to the base 10. 6 minus 8 पॉसिबल नहीं है, बोरो लिया हमने 16 to the base 10 का, तो यहाँ पे 1 ऐड किया तो 16 plus 6 बनता है 22 to the base 10. 22 और 8 पॉसिबल नहीं, 22 और 8 पॉसिबल है. अगेन इट बिकम्स व्हाट? 14 only.
14 in hex is E. ठीक है. नेक्स्ट ये बनेगा 8 to the base 10. 10 minus 8 possible. 2 to the base 10. 2 remains 2 in hex. So answer is 2E H. Understood, all of you? Yes, ma'am. A65H minus 777H equal to 2EEH. हाँ, अभी एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, मुझे सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आता है. 348H minus 9AAH. ऊपर वाला 3 डिजिट 4 डिजिट है. ऊपर वाला यानी कि फर्स्ट नंबर इज 4 डिजिट, सेकेंड नंबर इज 3 डिजिट. ध्यान दे. 2C48 माइनस 9AA. चलो करके बताओ मुझे और बोलो आंसर क्या है. मैम 229E. क्या है 2 मिनट. 229E आया मेरा. हाँ 229 है, बराबर है. इज एवरीबडी गेटिंग द सेम आंसर? यस सर. 229EH is the answer. Are you getting this answer, all of you? यस मैम. यस मैम. मैम नहीं आ रहा है. हाँ, बोलो. एक बार करके दिखाओगे ये वाला? हाँ मैं करके बताऊँगी. 2C48 minus 9A. 2C48 minus 9A. ओके, अभी 2 इज ये हेक्स में है. 2 इज 2 इन डेसिमल. C is 12 in decimal. 4 is 4 in decimal. 8 is 8 in decimal. 9 इधर आएगा ये पोजीशन में. 9 in decimal. A is 10 in decimal. Another A is 10 in decimal. ठीक है. अभी 8 minus 10 करना है.
पॉसिबल नहीं है तो हम बोरो लेंगे, ठीक है। तो बोरो लेंगे तो यहाँ पे हम 16 लिखेंगे और यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, ठीक है। ये तुम्हारा बोरो का लाइन है और ये तुम्हारा कैरी का लाइन है। कैरी की वजह से, बोरो की वजह से कैरी आता है। अभी ये दोनों को ऐड करके 16 + 8 बिकम्स 24 टू द बेस 10। 24 - 10 अभी हम करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि सबको समझ में आए। 24 - 10 कर रहे हैं हम लोग, तो वो हमें मिलता है 14 टू द बेस 10, जिसे हम कन्वर्ट करेंगे हेक्स में तो वो बनता है e टू द बेस 16। Is this clear to all of you now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. अभी नेक्स्ट ये क्या बनता है बोरो के साथ, 10 + 1 is 11 टू द बेस 10। 4 - 11 नहीं होता है तो हम वापस बोरो लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 16, यहाँ पे लिखेंगे 1। जैसे ही बोरो डाल देते हो कैरी लिख दो प्रीवियस पोजीशन में, तो 16 + 4 बिकम्स 20 टू द बेस 10। 20 - 11 करेंगे, 20 - 11 तो वो बनता है 9 टू द बेस 10। 9 इन हेक्स इज 9 only, ठीक है। नेक्स्ट अभी ये जो है 9 + 1 वो बनेगा 10 टू द बेस 10। 12 और 10 पॉसिबल है तो बोरो लेने का जरूरत नहीं है। 12 - 10 टू द बेस 10 इज 2 टू द बेस 10। 2 is 2 in hex और यहाँ पे कुछ भी नहीं, ये डायरेक्टली आएगा, so that is also hex and that's why your answer is 2C4A hex minus 9AA hex is 229E hex। समझा क्या अभी सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now we will go for 1's complement hex subtraction and 2's complement hex subtraction. But before that we have to see how do we find 1C and 2C in hex numbers. Okay. So let's see how to find 1C and 2C of hex. So 1's complement, 2's complement, how do we find out that direct hex number to be C? इसमें भी दो मेथड्स आएंगे, एक तो डायरेक्टली है बाय बाइनरी, you convert those hex numbers to binary and then find 1C and 2C, and second is direct method. Okay. तो बेसिकली ऑक्टल और हेक्स के लिए सारे मेथड बाइनरी थ्रू भी होते हैं जो हमने बाइनरी में देखे हैं। So let's consider a hex number as 459 hex. Okay, 459 hex. 459 hex का हमें 1C और 2C फाइंड करना है। So find 1C और 459 hex कैसे मिलेगा देखते हैं। हेक्स नंबर्स फाइंड करने के लिए, इसका 1C फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? ओके, 459 3 हमारे पास 3 डिजिट्स है तो हम 3 15s लेंगे।
तो हम 315 लेंगे। 459 इज बेसिकली रिटर्न इन फॉर्म ऑफ डेसिमल ईच डिजिट। अभी लकीली यहाँ पे सब सारे डिजिट्स जो डेसिमल में है वही हेक्स में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो 15 है वो भी हम डेसिमल में लिख रहे हैं, जैसे कि ऑक्टेल में हमने किया था। व्हेन वी वर फाइंडिंग 1C and 2C इन ऑक्टेल नंबर, वी हैव टेकन 7 फॉर सब्ट्रैक्शन। ओके, तो ये सब्ट्रैक्शन हम परफॉर्म करेंगे। नाउ 15 minus 9 is what? 6 in decimal. 15 minus 5 is 10 in decimal. 15 minus 4 is 11 in decimal. इसे हेक्स में लिखो, तो 6 in hex, A in hex and B in hex. So therefore 1C of 459 hex is BA6 hex. Did all of you understand? समझा क्या सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अभी फाइंड हम लोग QC कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है? फाइंड QC ऑफ 459। तो पहले तो 1C लिख लेते हैं, मीन्स 1C तो ये आया था ना हमें। हम यहाँ से स्टेप फॉरवर्ड करेंगे। 11 to the base 10, 10 to the base 10, 6 to the base 10, ये मिला था, उसमें ऐड 1 कर, तो ये मिलेगा 7 to the base 10, 10 to the base 10, 11 to the base 10. So which is 7 in hex, A in hex and B in hex. So this becomes your 2C, BA7. Did all of you understand? Yes. Huh? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now let's go for the 1C and 2C method. वही लेते हैं हम 73 minus 1C. So 1C method of acceptance. Let's take the same example what we have taken prior for subtraction. 73 minus 1C लेंगे. So example 1, 73H minus 1CH. तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? 1C मेथड है तो 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1C हमें फाइंड करना है. So step 1 is find 1C of 1C. अरे बाप रे, ये कंफ्यूजन है ना, कोई और नंबर लो, समझेगा ना तुम्हें, क्योंकि अपना सेकेंड नंबर ही 1C है, कंफ्यूजन नहीं चाहिए. फाइंड 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1CH. ठीक है, तो नाउ 1C इज व्हाट? 1 is 1 in decimal, C is 12 in decimal. इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 के साथ, 2 15, तो हमें मिलेगा क्या? 15 minus 12 is 3 in decimal, 15 minus 1 is 14 in decimal. तो ये बनता है 3 in hex और ये बनता है E in hex. ओके, सो बेसिकली उसका 1's कॉम्प्लीमेंट आया E3, हाँ E3H.
So answer is E3H. This is 1C of the second number. 1's complement of 1C. अभी step 2 क्या आएगा 1C method में? Take the first number 73H and add 1C of second number, that is E3H. Okay. Okay. तो अभी ये जो एडिशन है वो भी हेक्स एडिशन के तरीके से ही होगा. So 7 to the base 10, 3 to the base 10, E is 14 to the base 10, E is 3 to the base 10. ये ऐड तो ये आएगा 6 to the base 10. 3 plus 3 is 6 to the base 10. 14 plus 7 is क्या है 21 to the base 10. ठीक है. अब ये 21 जो है ये एक्सीड कर रहा है टोटल नंबर ऑफ जो नंबर है वो. हाँ, तो हम क्या करेंगे रेगुलर मेथड अपना क्या करते हैं हम लोग 16 सब्ट्रैक्ट करते हैं ना. तो हमने यहाँ पे 16 सब्ट्रैक्ट किया. 16 सब्ट्रैक्ट किया कैरी जनरेट हुआ जिसे हम कहेंगे EAC एंड अराउंड कैरी. वो कैरी यहाँ पे ऐड हो जाएगा. तो हमें आंसर क्या मिलेगा 6 plus 1 is 7 और ये 16 माइनस 21 माइनस 16 क्या आया था 5. तो यहाँ पे आएगा 5. दिस इज इन टर्म्स ऑफ डेसिमल ओनली. एक्स में हम उसे कैसे लिखते हैं वैसे ही वो 15 5 जो है वैसे ही रहेगा 7 जो है वो भी वैसे ही रहेगा इन हेक्स. So that's your answer 57. You can verify it with the previous thing what we did. You can see 73H minus 1CH direct method से भी 57 आया था. 1C से भी 57 आया. And as carry is generated, answer is positive because we are doing all 1C and 2C method of octal and hex for bigger minus smaller numbers only. We are not taking the second case. This is clear to everyone? Students, is this clear? Yes, ma'am. क्या ओवरहैंग हो गया क्या तुम लोग का कि दिवाली का हैंगओवर गया नहीं है और यू आर इन स्टिल द ब्रेक मोड ओनली. सच अ पुअर रिस्पॉन्स. नहीं मैम समझा. 73 लोग हैं समझा ना. यस मैम. क्या ब्रेकफास्ट लंच नहीं किया क्या ब्रंच जो भी है इसके लिए वो मैंने वो एक्चुअली पहले स्टार्टिंग में मेरे ध्यान में नहीं आया. मैंने 1 घंटे का ब्रेक ऐसा वो रैंडमली हो गया 12:30 to 2:30 लिखा. फिर मेरे ध्यान में आया एक घंटे का ब्रेक क्यों चाहिए तो वो सोच के मैंने 12 to 2 किया. Let's take next example. Let's take this one what we did. A65 minus 777. A65 to the base 16 minus 777 to the base 16. तो यहाँ पे स्टेप 1 होगा हमारा फाइंड 1C of 777H. ठीक है. सो बेसिकली करना क्या है FFF माइनस 777 हमें करना है. यहाँ पे हम F से सब्ट्रैक्ट करते हैं. जैसे यहाँ पे जब भी 1C फाइंड करना है ये तुम ध्यान में रख सकते हो तो हमें FF से सब्ट्रैक्ट करना है. यहाँ पे भी ये भी जो भी एक्चुअली हम कर रहे थे 459 का 1C फाइंड कर रहे थे तो वो बेसिकली FFF से सब्ट्रैक्ट हो रहा था. इसके लिए हम 15 कर से कर रहे थे.
ऐसा तुम ध्यान में रखो तो वो इजीली ध्यान में रहेगा तुम्हारे. आई एम राइटिंग ओवर हियर. इट इज basically FFF minus 777, which we later on write it as F in decimal is 15, 15 and 15. So we subtract it as 7, 7, 7. If the second number, that is 77, was not 777 but was any one of the hex numbers, then you will convert it to equivalent hex. जैसे कि अगर यहाँ पे लास्ट डिजिट 7 में अगर A होता तो तुम ये पोजीशन में A के जगह पे 10 लिखते थे. समझा ना मैं क्या बोल रही हूँ? अंडरस्टूड माय पॉइंट ना? यस मैम. क्या बैकग्राउंड में गाना वाना लगा के सुन रहे हो मेरा लेक्चर? इतना ज्यादा बोर करती हूँ मैं तुम्हें. Fifteen minus 7 is what now? 8. 8. 8 and 8. तो ये हेक्स में सेम ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है. So this is 8 hex. This is the 1C. 1's complement of 777. Now step 2. Please mute. Okay, 1 minute. Please mute. Step 2 is take first number A65. A65. You will add 1C of the second number, which is 888. Okay. So A is 10 to the base 10, 6 to the base 10, 5 to the base 10. 8 is 8. ये भी ऐड करो. So 5 plus 8 is 13 to the base 10. Then 6 plus 8 is 14 to the base 10. 10 plus 8 is 18 to the base 10. अभी 14 और 13 ने एक्सीड नहीं किया है एक्स वैल्यूज को. 16 एक्सीड नहीं किया है बट 18 ने किया है. तो हम यहाँ पे उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और कैरी 1 करेंगे आप, which will be called as EAC. ओके. तो ये जो 1 है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा 13 plus 1 is 14 to the base 10. This 14 remains like that, and 18 minus 16 is 2 to the base 10. Now you write this in form of your x number. So this will be 14 will be E. This will be E. This will be also E. This will be 2. That will be your answer. 2E. So this answer is 2E hex. Did all of you understand? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let's take other example. The bigger one, what will be? Purposely same examples I am taking so that you understand the difference. 2C48 minus 9AA. ये लेते हैं. 2C48 minus 9AA. Hex is what? ठीक है. So यहाँ पे भी step 1 will be find 1C of 2C48 hex. So 2C48 ये सब्ट्रैक्ट होगा 4F के साथ. Ma'am, find 1C of 9AA na. 1's complement of 9AH, na? Yes, 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 yes. चलो चलो चलो, यानी कि जो मेरा डाउट था कि तुम लोग डे ड्रीमिंग कर रहे हो वो नहीं है, बराबर ना?
हाँ, now here when I'm doing this, will I take 3 Fs or will I take 4 Fs? 3. 3 F. This is my million dollar wala question. Will I take 3 Fs or will I take 4 Fs? क्योंकि मैंने ये पॉइंट तुमको ना पहले प्रिसाइजली बोला था कि whenever we do subtraction, whether it is binary, whether it is hex or octal, by 2C or by 1C method, the number of digits has to be the same. So basically here you need to find 1C of 0988 because the first number is 4 digit, second number is 3 digit. Understood? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. 4 Fs लेंगे, 09AA लिखेंगे उसके नीचे, ठीक है? So 15, 15, 15, 50, 0 is 0, 9. अभी यहाँ पे जैसे मैंने पहले बोला था, जो A है हेक्स में उसको कन्वर्ट करो डेसिमल वैल्यू, तो 10 and 10. Now you subtract. So 15 minus 10 is 5. 5. 15 minus 9 is 6. And 15 minus 0 is 15. So ये आएगा 5, 5, 6 and this will be F in hex. So this is F655H 1C1 of 9. ठीक है? Step 2. You will take the first number 2C48. You will add 1C of second number F655. ठीक है? Now 2 is 2. C is 12. 4 is 4. 8 is 8 in decimal. F is 15 in decimal. 6 is 6. 5 is 5. 5 is 5. Add. Okay. 8 plus 5 is 13. ये वैसे तरह से रहेगा. 4 plus 9, 5 is 9. 12 plus 6 is 18. This has exceeded 16. Subtract करो 16, आंसर 2 आता है. Add 1 करो यहाँ पे, तो ये होगा 15 plus 2 is 17 plus 1 is 18. ये भी एक्सीड किया. सब्ट्रैक्ट करो 16, कैरी 1 आया जिसे हम कहेंगे EAC. ये आया 2. अभी ये EAC को यहाँ पे ऐड करो, तो 13 plus 1 is 14. 9 वैसे ही रहता है, 2 वैसे ही रहता है, 2 वैसे ही रहता है. Convert these hex values to decimal values to hex. So 14 is E, 9 is 9, 2 is 2, 2 is 2. That is your answer. Positive 2 to 9. Understood all of you? Yes, Yes. ma'am. Okay, so that completes 1C of hex subtraction. अभी 2C इसी तरीके से आएगा, तो मैं कोई भी 2 एग्जाम्पल ले लेती हूँ या फिर एक एग्जाम्पल दिखाए तो भी चलेगा ना? एक डाउट था. मैंने जब 1C लिया था 9AA का, तो मैंने बिना 4F लिए 3F से भी ट्राई किया था एंड आंसर सेम ही आया. सो व्हाई डू वी टेक एन एक्स्ट्रा F?
आंसर सेम ही आ रहा बिना एफ लिए। उधर F655 आया ना 1C, तो 655 से किया तो भी सेम ही आंसर आता है। अच्छा 655 तो F minus 9E QC4 is minus ओके। सो अभी तुम्हारा मतलब देखते हैं 3x लिया मैंने 10 10 9 5 5 6 step 1 step 2 2C4 plus 655 C is 12 4 is 4 8 6 5 5 13 9 18 18 माइनस 16 करेंगे कैरी यहाँ पे 1 करेंगे ये आया 3 ठीक है। सो आंसर इज 13 क्या है डी 9 2 3 नो कैरी जनरेटेड नो फाइनल कैरी 3 to 9 डी इज आंसर। हम लेकिन कैरी आगे ऐड होता है ना, एंड आगे अराउंड क्यों कैरी। ऐड करेंगे बाबा हम लोग नेक्स्ट डिजिट में ऐड करेंगे ना। अगर मेरा नंबर यहाँ पे एक्सीड कर रहा है 18 Yes. when I'm subtracting 16 नेक्स्ट पोजीशन में ये ऐड होगा ना। why Yes. will I take it to the next position? Okay. लॉजिक क्या है नेक्स्ट पोजीशन ना प्रीवियस Yes. नेक्स्ट पोजीशन बराबर ना बेटा। Yes. Yes. Okay. Thank you, ma'am. Okay. It's good that you ask because then what happens is all small doubts should not accumulate, should get cleared then and there. चलो अभी हम लोग 2C देखेंगे। We'll take same two examples. हाँ हेलो मैम। बोलो। मैम हम लोग का ये अटेंडेंस होगा क्या, ये वीक का? क्या बोला तुमने अटेंडेंस? ये वीक का होगा क्या? हाँ क्यों नहीं होगा बाबा। अच्छा पहले मुझे तू ये बता तेरा नाम क्या है? अख्तर। कैफ अली मैम। कैफ अली। अख्तर इज अ सरनेम। यस मैम। अच्छा तू अटेंडेंस के लिए बैठ रहा है क्या कैफ? नो मैम, वो एक्चुअली मैं थोड़ा अभी आउट ऑफ टाउन हूँ ना, तो वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन आते जाते रहता है। तो फिर कभी अगर चलेगा ना लाइट वाइट तो जल्दी आता नहीं, तो फिर वो अटेंडेंस छूट जाएगा ना। मेरा रिटर्न टिकट 14 का है। हाँ चलेगा नो इशू तुम ट्राई टू अटेंड। नहीं यस। होता है तो अभी लाइक टेक्निकल इशू अभी क्या कर सकते हैं। देन यू कैन फॉर क्वेश्चन यू कैन जस्ट सी द रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेटर। ठीक है ना। थैंक यू मैम। Okay, so let's go to the 2C method. So 2C method of same examples. या फिर कोई और लेती हूँ इसमें से कोई एक उठाती हूँ।
A65 minus 77. A65x minus 777x. Just a moment. Okay. So here again now step 1 will be find 2c of 777h. Okay. So f minus 777 हमें करना है. So f is 15, then 7, 7, 7. We are converting it to decimal. Now we will do the subtraction. This is 8, 8, 8. यहाँ पे ही हम add 1 कर देंगे. So this is 1c. Now adding 1 you will get 2c. So this is 9, 8, 8. So in hex this will be 9, 8, 8. So 2c becomes 8, 8, 9 hex of 777. Okay? Is this clear to everyone? Then step 2. Step 2 will be take the first number. A65 और उसको ऐड करो 8, 8, 9. A is 10, then 6, 5, then this is 8, 8, and 9. Whatever hex numbers you are having, you have to convert it back to decimal for the addition purpose. Now add this. Okay, so 5 plus 9 is 14 to the base 10. 6 plus 8 is 14 to the base 10. 14. 10 plus 8 is 18 to the base 10. So this has exceeded 16. So subtract 16, carry forward 1. This becomes 2 to the base 10. Carry is generated, so answer is positive, and discard carry. And this is the direct answer. This is the direct answer. So 2 to the base 10, 16 आएगा. This is e to the base 16, and this is also e to the base 16. So therefore, answer becomes A65 hex minus 777 hex is 2EE hex. बराबर ना? सेम आंसर आया ना? Yes. 2EE. Understood now, all of you? Yes. Okay. Yes, ma'am. और एक एग्जांपल दिखाओ, वो नेक्स्ट वाला जो था 2C मेथड से. क्या अभी समझेगा तुम लोग को? समझा. समझा ना? कि और एक बताऊं? ये वाला बताओ. 2C48 minus 9AA.
को आइदर भूख लगी है या किसी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। 2C48 माइनस 9AA। ठीक है, ये 2C से करना है। तो स्टेप 1 इज फाइंड 2C ऑफ 9AH। ठीक है, तो पहले 1C फाइंड करो। तो 4F लेंगे हम, 9AA को उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। So that becomes 15, 15, 15, 15. You're subtracting 0, 9, 10, 10. तो ये आया 5, 5, 15 minus 9 is 6 और ये आया 50 सब्ट्रैक्ट करने के बाद। हाँ, तो लिखते समय हम लिखेंगे 5, 5, 6 और ये F। So therefore 1C is what? F655H. So therefore 1C of 9AH is F655H. अभी इसका 2C फाइंड करो। ठीक है, दिस इज फाइंड फर्स्ट 1C, नाउ फाइंड 2C। F655 उधर ही कर सकते थे, मैंने सेपरेटली बताया बड़ा नंबर है करके। तो ये आया 656F, या फिर इधर ही कर सकते थे, कोई इशू नहीं था। दिस इज 2C। नाउ स्टेप 2 विल बी take the first number 2C48 plus we will add 2C of second number F656. So 2C48 15 6 5 6 add it. So this will become, what is happening to the lines? I don't know. They are coming like this. Okay. So this is 14. This is 9. This is 18. ये कन्वर्ट करना पड़ेगा -16। तो यहाँ पे ऐड 1 हो जाएगा, तो ये आएगा 2। Then 15 plus 2 is 17 plus 1 is 18. 18 minus again 16. कैरी आया यहाँ पे 1, ये आया 2। So carry generate answer is positive, discard carry. So answer is E922 in hex. So therefore final answer is 2C48 hex minus 9AA hex is 22E9E hex. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. So अभी ये हो गया अपना subtraction. Now we will go for binary, sorry, hex, multiplication and division. वो एक्चुअली वैसे ही है,
means we convert it into binary and then do it. That is how we have to do it. So I will show you 2 examples so that you don't have any confusion. Multiplication of x numbers. Okay. So now in multiplication, let's take some basic numbers. 72 and 39 लेती हूँ मैं. (72) and 39. Okay. So first of all, we need to convert it to binary. Now 72 hex is what? 7 is 011 and 2 is 0010. And 39 is 0011 is 3, 1001 is 9. अभी ध्यान देना, जब ये नंबर्स तुम कन्वर्ट कर देते हो तो ये वाला 0 और ये दो वाले 0 ये कोई एड ऑन नहीं करेंगे वैल्यूज को. तो व्हेन वी टेक एक्चुअली द numbers, okay, it should be only this much. 1110010 and 111001. Understood now, all of you? Yes, ma'am. तो अभी ये नंबर्स लेके हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे. नंबर्स लिख लेते हैं यहाँ पे. 1110010 1111001. मैं पहले ही जरा रोज ड्रॉ कर लेती हूँ, दिक्कत में है. कॉलम ड्रॉ कर. बाकी लिखते समय पोजीशन चेंज होना ही गड़बड़ कर सकता है ये टाइप के सेंस में, और तो कुछ नहीं. बना देती हूँ. चलो इतना स्टार्ट करते हैं. नाउ वंस ये पहला वाला पूरा नंबर आएगा, सो वी स्टार्ट इन दैट वे. So 1 2 3 4 5 6 7. So 1110010. वंजा वैसे ही आएगा. नेक्स्ट क्रॉस डाल देंगे. नेक्स्ट वाला 0 है तो 7 zeros आएंगे. 7 डिजिट नंबर है पहले वाला. हाँ, 1 2 3 4 5 6 7. So 7 zeros. 4 5 6 7. फिर 2 क्रॉसेस आएंगे, वापस 0 है तो वापस 7 zeros आएंगे. फिर 3 क्रॉसेस. नाउ इट इज वंजा, सो वी रिपीट द नंबर 1110010.
0 0 1 0. Then next position 4 crosses. वापस we repeat the number 1 1 1 0 0 1 0. Then last position 5 crosses. Repeat the number 1 1 1 0 0 1 0. And finally we go for the addition. समझ में आ रहा है ना सबको? You're understanding that it is the same way. You just need to convert that hex number to binary and then perform it and get the answer. Understood no all of you? Yes, ma'am. अभी एडिशन करेंगे. एडिशन भी उसी तरह से होगा. ये 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 plus 1 2. Sum is 0 carries 1. 1 1 1 3. Sum 1 carry 1. 1 1 1 3. Sum 1 carry 1. 1 1 2. Sum 0 carry 1. 1 1 1 3. Sum 1 carry 1. 1 1 1 1 4 आया. तो सम 0 कैरी 1 0. ये 2 है. 2 plus 1 plus 1 4. सम 0 कैरी 1 0. 2 plus 1 3. Sum 1 carry 1 and this. ठीक है. Now you will do the conversion. So start forming the groups. One hex number of 4 groups. Second hex number. Third hex number. लेफ्ट ओवर नहीं बनता है उसको वैसे ही छोड़ दो. Okay. Now, so this is what 2. This is what 6. This is what 9, and this is single one. So 1. So answer becomes 72 hex into 39 hex is 1962 hex. Understood all of you? समझा ना सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. वैसे ही डिवीजन भी होगा. डिवीजन ऑफ एक्स नंबर्स. डिवीजन ऑफ एक्स नंबर्स में भी हम उसी तरह से करेंगे. हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में एंड फाइनली वी विल परफॉर्म बाइनरी डिवीजन ओनली. So let's take some example. उनके लिए example लेते हैं. 7a hex divided by b in hex. ठीक है. तो 7a is 0 1 1 1. A is 1 0 1 0. And B is 1 0 1 1. ठीक है. तो ये 7 लिखते समय ये जो पहला वाला 0 है ये हम नहीं कंसिडर करेंगे तो भी चलेगा. हाँ. एंड वी डायरेक्टली टेक द नंबर एज 1 1 1 1 0 1 0. So let's start the division. 1 1 1 1 0 1 0. ठीक है. अभी यहाँ पे ये 1 0 1 1 है.
यहाँ पे हम ये फर्स्ट 4 डिजिट्स लेंगे बिकॉज ये अपना 4 डिजिट वाला नंबर है और हम कंपेयर करेंगे। तो ये डिवीजन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल। सो वी राइट 1 ज़ा माइनस 1 0 1 1 एंड डू द सब्ट्रैक्शन। तो 1 minus 1 0 1 minus 1 0 1 minus 0 1 1 minus 1 0। फिर अभी ये नेक्स्ट डिजिट कैरी फॉरवर्ड होगा। दिस इज 1 0 0 0 विच इज 8 एंड ये क्या है 1 0 1 1 विच इज बी। सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है तो वी राइट दिस डाउन एज 0 and carry forward the next position 1. Now it is possible, so we write 1s are you are all able to hear me, no? Yes, ma'am. So minus minus 1 0 1 1. So 1 minus 1 0 0 minus 1 difference 1 borrow 1 0 minus 0 0 0 minus 1 difference 1 borrow 1 0 minus 1 difference 1 borrow 1 1 minus 1 0 1 minus 1 0। तो ये आंसर है। अभी लास्ट डिजिट कैरी फॉरवर्ड करेंगे। So this is possible. So we write 1s are 1 0 1 1. Subtract. So difference 1 borrow 0 minus 1 1. Difference 1 1 minus 1 0. ये borrow यहाँ पे आया। 1 minus 0 is 1 1 minus 1 0 1 minus 1 0। ठीक है। तो नाउ एक डेसिमल पोजीशन स्पेसिफाई किया है कि 1 डेसिमल प्लेस तक फाइंड करो तो तुम और 4 टाइम्स नाउ आगे डेसिमल कंसिडर करके यू कैन जस्ट गो ऑन। So this becomes your question
Hello, are you able to hear me? Yes, ma'am. अरे मैं कब निकल गई लेक्चर से? 3-4 2 मिनट 3 minutes. क्या मैं तो समझा ही नहीं। मैं 2 देख 3 minutes पहले. माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ही गायब हो गया। ये मैं कर रही थी, ये तुमने सुना क्या डिवीजन का? हाँ, Did you hear this? मैम आप क्वेश्चन बोल रहे थे तभी बंद हो गया। क्वेश्चन हाँ, तो वही वो 1011 जो क्वेश्चन आता है, टू कन्वर्ट दैट क्वेश्चन फ्रॉम द एलिजिबल पोजीशन स्टार्ट ग्रुपिंग इन ग्रुप ऑफ 4। तो यहाँ पे सिंगल डिजिट 4 आया है, सिंगल नंबर टेक्स्ट का 4 डिजिट आया है, तो वो डायरेक्टली बी होता है, रिमाइंडर इज 1, सो दैट बिकम्स योर आंसर। अगर तुम्हें डेसिमल सब्ट्रैक्शन डेसिमल डिवीजन बोला है जहाँ पे तुम्हें 3 to 4 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करना है, then you can just take it carry forward in the same. Understood now all of you? समझा ना सबको? यस मैम। So this completes our arithmetic in hexadecimal numbers and octal numbers. Okay. Just a minute, मैं syllabus देख रही हूँ कि और कुछ इसमें बाकी नहीं है। So this completes our unit 1. ठीक है, यूनिट 1 अपना हो गया। अभी मैं जो कल से, मैं आज अभी कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ बिकॉज मुझे फ्रेशली स्टार्ट करना है। तुम लोग भी मेरे को अच्छा जैसा मुझे रिस्पॉन्स चाहिए वैसे नहीं दे रहे, तो मैं कल से फ्रेशली स्टार्ट करूँगी, यूनिट 2 स्टार्ट करूँगी। अभी मेरे बाद में कोई लेक्चर नहीं है ना तुम्हें? No, ma'am. हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही, मैं जल्दी छोड़ रही हूँ आज। तो कल से हम लोग फ्रेशली यूनिट 2 शुरू करेंगे, ठीक है? बुलियन थ्योरम्स एंड Okay, ma'am. चैप्टर 1। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। तुम्हें कुछ और मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का चाहिए क्या? वो रिपीट है, सेम है करके मैंने और एग्जांपल्स नहीं दिखाए। इफ यू वांट यू जस्ट टेल मी, लेट मी नो। चाहिए तो मैं दिखा दूंगी।